Well, it's again a joy for us to welcome you all and thank you for joining. It's going to be a great evening again. It's a time that we come together as family for family devotional, exalting the name of the Lord and also learning from God's word. I'm sure that you are going to enjoy this scene. Let's all worship the Lord, beginning with a song, and then we will get into the devotion. God bless you all. You know, these days are very tough and getting tougher. ये जो समय है बहुत ही मुश्किल और मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। But last week, two of our very close known people went to be with the Lord. और पिछले 2 दिन पहले हमारी जो बहुत ही समीप 2 बहनें इस दुनिया को छोड़ के चले गई। Because of Corona. और कोरोना के कारण। Well, with that, I want to, make a request to all our CCC family and all extended family, all our friends who are listening to me through this face live.
और आज मैं अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे सारी CCC फैमिली के लिए और भी हमारे जितने अजीज मित्र हैं और नए लोग हैं जो हमारे फेसबुक में आज बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं। According to the government, we have got notification from advisory from All India Medical, one of the doctors, saying that the next 15 to 20 days are going to be very crucial for our city. और हमारी सरकार के द्वारा और ऑल इंडिया के डॉक्टर्स के द्वारा इस प्रकार से जानकारी मिली है कि आने वाले 15 से 20 दिन बहुत ही भयानक दिन होगा। So we would request all of you to to self lockdown, because we are in unlock right now, but I want you to self lockdown. If you don't have to go out, please be at home. If you are working, you need to go. I understand that. We're going to pray for God's protection upon all of you. We are all praying for God's protection upon each one of you. But if you don't have to go out, just be at home and take care of yourself. And we are praying for you. Rest assured of all our prayers for you. But you need to take care of yourself also. और सरकार ने यद्यपि हमारी जो दिल्ली शहर को अनलॉक कर दिया है, अभी हम बाहर जाने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हम सब स्वयं को एक घर के अंदर में रहकर अपने जीवन को सुरक्षित रखें। यदि आप नौकरी करते हैं तो जरूर आप जाइए, हम आप सबके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप सबकी सुरक्षा के लिए, लेकिन हमारा अनुरोध है कि आप अपने घरों में रहें, यहाँ वहाँ ना जाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। Well, this Sunday, as I have told you on Wednesday, that I am going to give you the Zoom ID for this Sunday. This Sunday is going to be a very special Sunday. और बुधवार के दिन मैंने कहा था कि शुक्रवार के दिन हम अपनी आराधना, रविवार को होने वाला आराधना के Zoom ID को हम आपको देंगे। So if you are a part of a fellowship, I understand that you be with that fellowship, but you are not a part of any fellowship. I want you to just come and receive God's blessing at 9 o'clock, and then second service is at 11 o'clock. और ये जो आने वाले रविवार को एक विशेष आराधना सभा होगी, और इसलिए यदि आप और किसी संगति से नहीं जुड़े हैं तो हम आपसे कहते हैं कि आप हमारी आराधना के साथ जुड़िएगा और आशीष को पाइएगा। We are going to be praying for the infilling of the Holy Spirit. और आने वाले रविवार को हम पवित्र आत्मा से भरपूरी के लिए विशेष प्रार्थना को करेंगे। When Jesus was resurrected, before that he promised, he said that I am going to send a helper for you, a comforter, someone who can lead you and guide you. और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के पहले प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहा कि मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे लिए एक सहायक को भेजूंगा, पवित्र आत्मा जो तुम्हारी अगुवाई हर दिन करेगी। And so God has sent His Holy Spirit already, and you are eligible. If you are Jesus, the Lord of your life, then you are eligible to receive the infilling of the Holy Spirit. और प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को हमारे लिए दे दिया है और आप उसके योग्य हैं, और आप यदि प्रभु के संतान हैं तो आप उसे जरूर प्राप्त कर सकते हैं। So don't miss being there. We are going to have very special prayer on Sunday for the infilling of the Holy Spirit, special prayer. और इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं आने वाले रविवार की आराधना को आप बिल्कुल ना गवाएं, आप आइए क्योंकि वो संडे विशेष आराधना होने वाली है। Well, I'm sure that you have already shared your Facebook page with your friends, because this is how we can take the gospel and good news to other people. और मैं विश्वास करता हूँ कि आपने अभी शुरुआत में ही इस प्रोग्राम को, जो बाइबल अध्ययन की जो इस अध्याय को आपने शेयर किया है, और ये एक बहुत अच्छा उम्दा तरीका है अपने मित्रों तक सुसमाचार देने का। So good to see Sister Brenda Halson here, and Sudipti, Sister Hema, and we have Dinanath watching us, Meenakshi, W. Lakra. There are so many of you. Thank you so much, and thank you so much being there. The ID is already there, password is also there, so don't forget to send to your friends, invite them to come and be a part of this great move of God that God is going to do in our midst. और हमने कुछ लोगों के नाम को लिया है, लेकिन आप लोग कई लोग इसमें से जुड़े हुए हैं। आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे, और हमारे इसमें जो संडे के आराधना के आईडी और पासवर्ड दिया हुआ है, आप ना भूलें, अपने मित्रों को भी उसको भी भेज के देने के लिए प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। Well, time is just running fast, so we have just few minutes left, and let's go to the Bible. और समय बहुत तेजी से भाग रही है, हमारे पास कुछ चंद मिनट रह के हैं। आइए जल्दी से हम अपनी बाइबल अध्ययन की ओर जाएं। And we are in in David's Psalm, Psalm 6, and we continue from verse 6 onwards.
और फिर हम दाऊद के भजन में हैं, भजन संहिता 6वां, और हम इसके 6वें पद में हैं। This is a prayer of David to God, और ये दाऊद की प्रार्थना परमेश्वर के लिए, and he is crying out to God, and he is telling God about his physical agony, his soul in groaning, in agony, in pain. So he is talking about all those, and let's see what he is saying toward the end of this, and how the victory that God answers his prayer and how he feels victory in his life. हमने देखा कि किस प्रकार से दाऊद अपने दर्द को, जो अग्नि से गुजरने वाली उस दर्द को प्रभु के पास दे रहा है, जो शारीरिक उसकी जो ताड़ना हो रही है, जो बेचैनी हो रही है, और उसके प्राण जो परेशान है, जो कहरा रहा है, उस सारे विषय को, उसको दर्द को प्रभु यीशु मसीह को दे रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं अंत में किस प्रकार से परमेश्वर उसको जय को दिया। Verses 6 and 7. और 6वां और 7वें पद में, I am weary with my groaning, all night I make my bed swim, I drench my couch with my tears, my eye waste away because of grief, it grows old because of my enemies. मैं कहराते थक गया, मैं अपनी खाट आंसू से भिगोता हूँ, प्रति रात मेरा बिछौना भीगता है, मेरी आंखें शोक से बैठ जाती है, और मेरे सब सताने वाले के कारण वे धुंधला गई है। So this groaning or this cry of David has three components in that. और जो कहराने वाली बात है, उसमें 3 बातों को हम देखते हैं। First of all, David is feeling that God is angry with him, सबसे पहले वो अनुभव करता है कि परमेश्वर उससे क्रोधित है, and he also feels that God is away from him. और उसको लगता है कि परमेश्वर उससे दूर है। So because of that, he is not able to sleep at the night. और इस कारण वो रात भर सो नहीं पा रहा है। And he says that all night I make my bed swim. और वो कहता है कि रात भर मैं रोते रोते अपने खाट को आंसू से भिंगा देता हूँ। Well, this is of course an example of a poetic exaggeration. और ये जो एक हम देखते कि कवि के द्वारा लिखने वाले एक कल्पना के जैसे हैं। Because David didn't want us to believe that he was floating in the night in the tears, and there's a lot of tears, and there's a river tears. I mean, it was not that he was wanting us to believe that. और वो दाऊद इस बात पे विश्वास नहीं करते हैं कि वो रात भर जो आंसुओं में इस प्रकार से तैर रहा है। But this is poetic literature. और लेकिन ये जो है कि एक कविता का एक लेख है। And it is literally with this literary context we have to understand this. और इसलिए हमें इस कहावत को पूरी तरह से समझने की जरूरत है। And also he says, my eyes waste away. और उसके बाद वो कहता है कि मेरी जो आंखें शोक से बैठ गई हैं। Talks about his eye becoming red and sore because of the tears and the crying and lack of sleep. और उसका कहने का तात्पर्य कि उसकी आंखें जो रोने के कारण, आंसू के कारण लाल हो गई है, और थकान के कारण रात भर नहीं सोया है, उसकी आंखें बहुत थक गई है। Well, these words very clearly say that he was very much discouraged and depressed at this time. और ये पद देखने से हमें मालूम चलता है कि दाऊद उस समय बहुत ही निराशा में और व्याकुलता में हो गया We है। all go through situations like this. और हम भी अपने जीवन में इस प्रकार की परिस्थितियों से होकर जाते But when हैं। we go through the valley of tears, that is not the end of it. लेकिन हम एक बात को जानते हैं कि जब हम आंसू भरे तराइयों से होकर जाते हैं, वो हमारा अंत नहीं है। But God brings always us through it and then gives us victory. और लेकिन परमेश्वर हमें जरूर आंसू की तरह से लेकर चलता है, लेकिन हमें हमेशा जय को देता है। That is what the last part of this this chapter says. और यही इस अध्याय के आखिरी पद में दिया गया है। Here David is making a confident declaration. और यहाँ पे दाऊद एक हियाव के साथ एक घोषणा को करता है। Verses 8 through 10. और 8 से लेकर 10 पद तक। He says, depart from me, all workers of iniquity, for the Lord has heard the voice of my weeping. और वो कहता है कि ये सब अनर्थकारियों मेरे से दूर हो जाओ, क्योंकि यहोवा ने मेरे रोने के शब्द को सुन लिया है। What a great declaration that is making. The God has heard my prayers. और कितना बड़ा ये घोषणा वो करता है कि परमेश्वर ने मेरे रोना को देख लिया है। Then he says, the Lord has heard my supplication. और उसके बाद वो कहता है कि वो मेरे रोने के शब्द को सुन लिया The है। Lord will receive my prayer. और वो मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया And है। let all my enemies be ashamed and greatly troubled. और मेरे जितने शत्रु बैरी हैं वो लज्जित हो गए और मुझसे दूर हो गए And हैं। let them turn back suddenly and be ashamed. और वो एकाएक मुझसे दूर हो गया और शर्मिंदे हो गए हैं। So here verse 8 says that David says, all workers of iniquity,
depart from me. और वो कहता है कि जितने भी अनर्थकारी लोग हैं, मेरे जो साथी वो मुझसे दूर हो जाएं। Because we know that David had some down times in his life where he was associated with people who did iniquity or sins. And now he says that I don't have any association, I don't want to have any association with those people. And he's saying that depart from me, all people who do iniquity. और हम जानते हैं कि दाऊद जानता था कि उसके जीवन में ऐसा एक समय था कि उसके जो साथी लोग थे, अनर्थ के कार्य को करने वाले थे, वो उनके साथ गिरा हुआ था। लेकिन अब वो जान गया है, इसलिए वो कहता है कि ऐसे अनर्थ के कार्य करने वाले मेरे साथी हो, वो मुझसे दूर हो गए हैं। So he wanted to have a separation from the every association of the ungodly ones. और वो अब एक निर्णय को लेता है कि जो अधर्मी लोग हैं, जो प्रभु के लोग नहीं, उन लोगों से मैं अलग हो जाऊं। It is very important to have a disassociation with the ungodly. और ये बहुत जरूरी है कि हमें ऐसे लोगों से संगति नहीं रखना है जो अनर्थ के कार्य को करते हैं। You know, there was an author and a preacher, his name was J. Edwin Orr. He lived he passed away in 1987, and he was a part of the second awakening of the revival that took place in the US, Canada, and all those some countries. और एक प्रभु के दास जिनका नाम जेम्स एडविन है, और वो जो कि 1912 और 1870 उस समय के वो प्रभु के दास थे। और उन्होंने जो अमेरिका, कनाडा, उस एरिया में जब एक बहुत बड़ी बेदारी हो, उस समय में वो वहाँ पे थे। He was an author, he was a writer, hymn writer, he was a professor. He was a promoter of the church revival and renewal, so he was very influential person. और वो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्ति थे, क्योंकि वो लेखक थे और फिर वो प्रोफेसर थे और वो कलीसिया के इतिहास में जाने माने एक व्यक्ति थे। And in one of his books, he writes about the revival that took place in different parts, and especially talks about a place called Halifax. और फिर उन्होंने एक किताब को लगा, उस किताब में उन्होंने इस बात को लिखा है कि कई जगह पे बेदारी आई, विशेष करके एक पर्टिकुलर स्थान के बारे में उसने लिखा है, हैलिफैक्स। Yeah, Halifax. Halifax is a part of Canada. It is toward the eastern Atlantic Ocean, and that part they had a very great revival that happened in that area, in that port. और ये जो हैलिफैक्स जगह है वो अटलांटा के, जो कनाडा के, जो अटलांटिक ओशन के उस पास में है। So during this time there was a boxer. He became a believer. He received Jesus as his personal savior. और उसके समय पर एक जो बॉक्सर था, कुश्ती लड़ने वाला था, वो प्रभु यीशु किया। So he won the boxing, and he won lot of money and a belt because of his boxing and that competition. और ये व्यक्ति अपने जो कुश्ती पर विजय को हासिल किया था, उसको कई मेडल मिले थे, कई बेल्ट मिले थे, और वो व्यक्ति। So as he was coming out, his friends surrounded him and they started ridicule him. और ये जो व्यक्ति जब जीत को हासिल करके बाहर आया, तो उसके दोस्त उसके चारों तरफ से घेरे हुए थे। And then these friends told him that he is becoming a believer. He's becoming a believer. They started ridiculing him. और फिर उसके सारे मित्र इस प्रकार से कहने लगे, देखो ये व्यक्ति विश्वासी बन गया, इस प्रकार उसका मजाक उड़ाने लगे। And they asked him, what about the belt? और फिर अब तो बेल्ट का क्या करोगे, कुश्ती के बेल्ट? So he said, either you have to fight it or fight for it, or you have to give it up. और फिर वो लोग इस प्रकार से कहे कि या तो फिर तुम उसके लिए लड़ाई करो, कुश्ती को लड़ो, या फिर तुम उसको छोड़ दो। And the boxer said to them that I will give up my belt and I will give up you also. और उसने इस प्रकार से कहा कि मैं अपने बेल्ट को भी छोड़ता हूँ और तुम लोगों को भी मैं छोड़ता हूँ। Because you do not love Jesus, I will give up you also. I will give up all my honor and everything, and I will give up you also as friends who don't believe in Jesus. और फिर वो अपने मित्रों से इस प्रकार से कहा, जो उसको ठट्टे में उड़ाते हैं, कि मैं आप लोगों को भी छोड़ना चाहता हूँ, और मैं अपने सारे आदर, सम्मान, मान और वो जो कुश्ती से पाए हुए सब चीजों को मैं त्याग देना चाहता हूँ। And he said that if you won't go with me to heaven, I will not go with you to hell. और उसने अपने मित्रों से कहा कि यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग में आना नहीं चाहते, तो मैं तुम्हारे साथ नरक की ओर जाना नहीं चाहता। He said, either you come with me to heaven, because since my friends are going to hell, that does not mean I am also going to go with them. और वो इस प्रकार से कहने का तात्पर्य ये था कि यदि तुम मेरे साथ स्वर्ग में आना नहीं चाहते हो, तो मैं ऐसे अनर्थ कार्य करने वाले मित्रों के साथ मैं नरक की ओर जाना नहीं चाहता। So he gave up the belt to them, and he was able to persuade some of his friends
to become believers, and one of them became a fiery preacher, and he began to spread God's love to other people. और फिर उसने क्या किया, अपने कुश्ती से जीत को हासिल की, उस बेल्ट को उनको दे दिया और अपने मित्रों को भी त्यागा, लेकिन उसमें से उन कई लोगों में से उसने उनको प्रभु की ओर लेकर आया। उसमें से एक उसका मित्र था जो प्रसिद्ध परमेश्वर के लिए प्रवक्ता बना। So I'm talking about disassociation with ungodly people. और मेरे कहने का मतलब है कि जो अनर्थ करने वाले अधर्मियों के साथ संगति ना करना। Sinners, people who are just like just living in the pleasures of this world, but disassociating with them. That's what David is talking here. ऐसे लोग जो पाप में अपने जीवन को बिताते हैं, संसार के अभिलाषों में वो अपनी संगति को रखते हैं, ऐसे लोगों से अलग होने के लिए दाऊद कहता है। Then David says here, the Lord has heard my voice, the voice of my weeping. और वो कहता है कि यहोवा ने मेरी प्रार्थना की गिड़गिड़ाने को सुन लिया है। So here David is making a confident note here. और यहाँ पे दाऊद एक अपने निश्चित हिवाए वाले एक नोट को कहता है। See, weeping has a voice before God. और जो रोने की आवाज है, गिड़गिड़ाने की आवाज है, वो परमेश्वर को पुकारने के लिए है। God is not impressed with the emotional displays. और परमेश्वर खुश नहीं होता है कि हमारे जो भावनात्मक जो प्रकृति है उसके लिए, But a passionate heart always impress God. लेकिन जो कि जोश से भरा हुआ दिल को वो हमेशा चाहता है। David was never afraid to cry out to God. और दाऊद कभी भी हिचकिचाता नहीं था प्रभु की उपस्थिति में जाकर पुकारने के लिए। David was never ashamed of people around him. Though he was a king, he was never ashamed to worship God or cry before God, express himself before God. He was never afraid, or he was never ashamed of that. और दाऊद कभी भी डरता नहीं था और कभी भी शर्मिंदा महसूस नहीं करता था। जब उसके मित्र के चारों ओर होता था तभी भी वो परमेश्वर को पुकारता था और उसके समक्ष जाके उसकी आराधना करता था। And God honored the voice of his weeping. और परमेश्वर ने उसके रोने की और गिड़गिड़ाने की उस आवाज को आदर किया। See, Spurgeon once said that the tears, when we pray, when you shed tears and pray, that tears can be called as the liquid prayers. और स्पर्जन ने इस प्रकार से कहा कि जब हम उसकी उपस्थिति में जाके प्रार्थना करते आंसू बहाते हैं तो एक द्रव्य जो लिक्विड प्रेयर के रूप में। Hallelujah. Hallelujah. So your tears are not wasted. इसलिए आपके जो बहाए हुए आंसू है वो व्यर्थ नहीं है। I'm not talking about you're crying because somebody said to you something, and I'm not talking about that. People, because they cry more for that, but I'm talking about shedding tears as you pray for your children, pray for your finances, pray for protection. You go before God and cry out to Him. God keeps those tears in a bottle, and He keeps that, and He always answers. That becomes liquid prayers. और मैं उस आंसू के बारे में नहीं कह रहा हूँ कि जब लोग आपको कुछ कह देते हैं उसको आप याद करके आंसू बहाते हैं, लेकिन प्रभु की उपस्थिति में जाकर जिस भी विषय के लिए परिवार से संबंधित या जो भी आपके जीवन के संबंधित विषय को आप आंसू के साथ उसके समक्ष रखते हैं, उस आंसू को परमेश्वर का वचन कहता है वो कुप्पी पे इकट्ठा करके रखता है। So you see the development of this progress of this chapter here. He was discouraged, disappointed, but as he comes toward the end of this chapter, he is so rejoicing, he is so happy because my God is living, my God is a prayer answering God. For my God, nothing is impossible. He is going to turn everything around for me because my God is on the throne. और जब हम इस बाइबल को जिस अध्याय की शुरुआत से हम देखते कि दाऊद बहुत निराशा में था, हताश हो गया था, लेकिन जब अंत के पदों में आते तो हम जानते हैं कि वो किस प्रकार से प्रोत्साहित हो गया और वो जान के कि परमेश्वर उसके साथ है और उसे जय को दे दिया है। One of the devotion I told you about Martin Luther. और एक बाइबल अध्ययन में मैंने मार्टिन लूथर के बारे में बताया था। Martin Luther was one of the greatest, the person in the history of the church that brought impact and even led a whole reformation for the whole Christian nation, Christianity. और हम सब जानते हैं कि मार्टिन लूथर जो कि इतिहास में इतना प्रसिद्ध माना जाता है, जिसने पूरे कलीसिया के इतिहास में उसने प्रभाव को डाला। These are all men of prayer. और ये सारे लोग प्रार्थना करने वाले योद्धा थे। So one day Martin Luther was praying. और एक दिन जब मार्टिन लूथर प्रार्थना कर रहे थे, He was just, he was praying, and in that prayer he was praying in agony. He was crying out to God, and he was just interceding before God. और ये एक दिन वो प्रभु की उपस्थिति में बड़े जोश के साथ, बड़े दर्द के साथ और प्रभु से वो प्रार्थना कर रहा था। He was crying out to God. और वो परमेश्वर को दुहाई दे रहा था, पुकार रहा था, रो रहा था। All of a sudden, और एकाएक he jumped in from that room and he came out of the room shouting,
Visimus, Visimus. और फिर वो अपने उस जगह से एक से कूद के खड़ा हो गया और बाहर निकल के वो कहने लगा विसिमस विसिमस करके। In German, Visimus means victory. और जर्मनी भाषा में विसिमस का मतलब है कि जय। So he said, I got the victory through prayer. और वो इस प्रकार से चिल्लाने लगा कि प्रार्थना के द्वारा मैंने जय को प्राप्त कर लिया है। David is feeling the same. और फिर दाऊद भी इसी प्रकार से अनुभव कर रहा He है। had all these problems. और पूरी समस्या के बीच में People against him. और लोग उसके विरोध में But he थे। says, my God heard my prayer. लेकिन उसने कहा कि मेरे प्रभु ने मेरी प्रार्थना को सुन He लिया है। shouted for victory. और वो जोर से चिल्लाने लगा कि अपने जय के लिए। And then he says, let all my enemies be ashamed and greatly troubled. और उसके बाद वो कहते कि मेरे सारे शत्रु बहुत ही लज्जित हो गए और वो डर गए। Hallelujah. David says, the trouble that I was having, now God is going to transfer those troubles to my enemies. और वो कहता है कि जो समस्या से मैं गुजर रहा था और जो परेशानी से मैं गुजर रहा था उसको प्रभु ने मुझसे हटाकर मेरे शत्रुओं को ऊपर डाल दिया। Our God is a prayer answering God. हमारा परमेश्वर प्रार्थना सुनने वाला है। What a great privilege that I and you have to serve this God. और कितना सौभाग्य है मुझे और आपको ऐसे परमेश्वर की सेवा करने के He is the लिए creator of the universe. जो पूरे ब्रह्मांड का सृष्टि करता है। Your prayers are never wasted. और आपकी प्रार्थना व्यर्थ नहीं Your है tears are never wasted. और आपके आंसू कभी भी व्यर्थ नहीं हुए Your हैं pains are never wasted. और आप जिस दर्द से गुजरे हो कभी व्यर्थ नहीं होगा। God never wastes our pain. और परमेश्वर कभी भी हमारे दर्द को यूं ही जाने नहीं देगा And He will give us victory. और वो हमें जय को देगा। Amen. आमीन। Let us rejoice and give glory to God. आइए हम उसको जश्न को मनाएं और उसको महिमा को दें। Amen. आमीन। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। सुनिए जो आते शरण तो मन में होती उमंग भर दे तो मुझको पिता पाऊं आशीष में तुझसे सदा भर दे तू मुझको पिता पाऊं आशीष में तुझसे सदा। सुन ले जब मैं प्रार्थना करूं हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं हे प्रभु तेरी बातों को मेरे जीवन में पूरी करूं। I want to pray for you right now. और अभी हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं Let's pray for Brother Dinanath who is not keeping well, और हम भाई दीनानाथ के लिए प्रार्थना करेंगे जिनकी तबीयत खराब है and that God would touch Brother Dinanath and heal him completely. और प्रभु यीशु मसीह उन्हें स्पर्श के लिए पूरी चंगाई को दे। And also we're going to pray for God's protection upon each one of you. और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की सुरक्षा हम सबके ऊपर में होने के लिए That the blood of Jesus would cover you और प्रभु यीशु मसीह के लहू हम सबको ढांपने दे and also cover your families. और
और आपके परिवार को from every infection of coronavirus. और कोरोना वायरस के सारे इन्फेक्शन से। Well, if you are suffering with any kind of coronavirus or any sickness, we are going to pray for you also. और यदि आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं और या और किसी बीमारी से पीड़ित, हम आपके लिए प्रार्थना करना And चाहते some of हैं। you are suffering with fever, seasonal fever, we are going to pray that God will touch you. और आप ऐसे कुछ लोग जो बदलते हुए मौसम के कारण बुखार से पीड़ित हैं, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं। Shall you all close our eyes for prayer? आइए हम सब प्रार्थना कर अपनी आंखों को बंद करें। Dear Heavenly Father, we come before your throne of grace. प्रिय स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम तेरे दया के सिंहासन के तले आते हैं। At this time, we bring all your children before your throne. और इस समय तेरे सारे संतान को तेरे सिंहासन के तले लेकर आते हैं। Lord, I pray for a blessing upon your people. और हम प्रार्थना करते हैं तेरे आशीष तेरे लोगों के ऊपर आ जाए। Especially I pray for healing upon your people. और इस समय प्रार्थना करते हैं तेरी चंगाई तेरे लोगों के ऊपर आ जाए। Lord, we pray for Brother Dinanath. और हम एक मन होकर भाई दीनानाथ के लिए प्रार्थना करते Pray, हैं। Lord, that you would cover him under your blood. और हम प्रार्थना करते हैं तो अपने लहू की सामर्थ से उस भाई को ढांप ले। Lord, we come against every spirit of fear right now in Jesus' name. और इस समय प्रार्थना करते हैं सारे भय की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाने दे। Lord, I pray for each and every family, every member that is listening to your word right now. और इस समय प्रार्थना करते हैं सारे परिवारों के लिए और सारे परिवार के सदस्य के लिए जो इस वचन को आज सुन रहे थे। We pray that you would cover each one of them under your blood, oh Jesus. और हम प्रार्थना करते हैं हर एक परिवार को, हर एक व्यक्ति को तेरे लहू के उसमें तो सुरक्षित रख। I pray for good health upon and long life for your people. और हम प्रार्थना करते हैं तेरे लोगों की लंबी उम्र के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के Lord, लिए। especially I pray for all those who are sharing their Facebook page with their friends. I pray for a special blessing upon them. और हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जितने लोगों ने आज के संदेश को अपने दोस्तों के लिए शेयर किया, परमेश्वर उनकी जिन्हें बहुतायत की आशीष को तू दे, That their friends will be able to hear your word. ताकि उनके मित्र तेरे वचन को सुनने वाले हो जाएं। And they will all be able to, Lord, receive the victory that you have for all of us. और वो लोग भी तेरे द्वारा तेरे जय को प्राप्त करने वाले हो जाएं। Especially we also pray for the upcoming Sunday. और साथ ही साथ आने वाले रविवार की आराधना के लिए प्रार्थना करते We हैं। know that you are going to pour out your spirit in a mighty way. और हम जानते हैं कि उस दिन में तू अपनी आत्मा की भरपूरी को हमारे अंदर डालने जा रहा As we है। are all going to come in your presence with great expectation, God, I pray that you would fulfill your promise and fill your people with the Holy Spirit. और हम प्रभु जानते हैं कि जब हम बड़े उम्मीद के साथ उस दिन आराधना करने के लिए आएंगे और तो उस दिन महान कार्य करने जा रहा है, तो अपने आत्मा की बारिश को हमारे अंदर डालने जा रहा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो We यीशु, give you the glory. हम तुझे महिमा देते हैं। Thank you for blessing और us. धन्यवाद आशीष देने के लिए। In Jesus' name I pray. यीशु मसीह के नाम से मैं इस प्रार्थना को मांगता And हूँ। all of us together say, और हम एक साथ मिलकर कहें Amen. 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 God bless you. और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष You know, I दे। know there are so many of you don't have time to read your name out, but we know who are there, and we thank you. God bless you. Let's come back again for devotional on Monday, but Sunday don't forget 9 o'clock and 11 o'clock. और आप लोग कई लोग दिख रहे हैं, मैं सबके नाम को ले नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं प्रतीक्षा कर रहा हूँ रविवार को जूम आराधना में आप सबसे मिलने के लिए, और सोमवार को बाइबल अध्ययन में फिर हम आपसे मिलेंगे। We'll be praying for you. We love you. Looking forward. Be safe. Be at home. If you don't have to go out, be at home. God bless you. May God protect you. और हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए प्रतिदिन प्रार्थना करते हैं। आप अपने घरों में सुरक्षित रहिए, अपने आप को संभाल के रखिए। अगर जरूरत नहीं है तो ज्यादा घर से बाहर ना जाएं। प्रभु आप सबको आशीष दें। Amen. आमीन।